ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਸਾਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਰੁਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੋਨੀ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਮਈ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਨੀ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗਦਾਨ, ਖੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੈਲੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। मैम अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं डॉक्टर पारुल हूँ। आई एम द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है एट PGI चंडीगढ़। जी मैम, ये वंश जो 11 महीने से बच्चा बताया जा रहा है उसने डोनेट किए पार्ट्स, तो क्या पार्ट्स डोनेट किए क्या? देखिए इसकी 2 किडनीज डोनेट हुई हैं जी। तो क्या उससे क्या बेनिफिट रहेगा? देखिए उससे जो बेनिफिट होगा वो होगा जो एंड ऑर्गन स्टेज फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, एंड किडनी जैसे किडनीज जिनकी ख़राब हो गई हैं, उन पेशेंट्स को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है कि उनका जब ट्रांसप्लांट होगा दे विल बी एबल टू लीड अ बेटर लाइफ विदाउट डायलिसिस और विदाउट थोड़ी सी कम दवाइयों के साथ। दवाइयाँ उनको खाने पड़ेंगी बट स्टिल बेटर लाइफ हो जाएगी उनकी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम, डोनेट करना चाहिए इस तरीके से? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए जो इन अंग मतलब फेलियर से जो पेशेंट्स जूझ रहे होते हैं उनके लिए सिर्फ एक सेकंड चांस ऑफ लाइफ एक ट्रांसप्लांट रहता है। तो ट्रांसप्लांट तभी पॉसिबल है अगर कोई डोनेट करेगा। अगर कोई डोनेट नहीं करेगा तो उनकी लाइफ को नहीं बचाया जा सकता है। तो एक महान काम किया जा सकता है अंगदान करके। तो वंश ने ये महान काम किया है कि किसी की जान बचाएंगे। बिल्कुल जी। देखिए इतना छोटा बच्चा और इतनी अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा काम करके गया है, इससे तो सबको पूरी दुनिया को प्रोत्साहन लेना चाहिए और इस काम के लिए आगे आना चाहिए। टोनी बंसल। बेटे का क्या नाम है आपके? टोनी वंश बंसल। वंश कितने उम्र थी उनकी 10 महीने की थी जी। तो क्या आपने अब क्या किया, अंगदान किए उसकी किस तरीके से? अंग भी दान किए हैं और उसकी बॉडी भी डोनेट की है जी। जी। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि इस तरीके से डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो वैसे ही नाजुक स्थिति परिवार की है? हमारे गुरुजी हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी, उनकी प्रेरणा के अनुसार ही हम ये बॉडी डोनेट की है। हुआ क्या था, कैसे डेथ कैसे हुई? जे सुबह 9 बजे का आसपास 9 बजे का टाइम था जी। नहलाया था उसको जी। नहला के कपड़े डाल रहे थे, बस नहलाते हाथ से कपड़े डालते हुए निकल गया हाथ से।
तो अभी क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आपने भी डोनेट किया है कि किस तरीके से मदद की जा सकती है बेसहारा? हम तो लोगों में सभी को यही बात बोलेंगे जी, देखो जाने वाला जी है, कोई भी है, मालिक का जी है, वो तो मालिक ले गया, मगर सभी जे अगर उसका कोई भी शरीर है, उस पार्ट्स हैं उसमें डोनेट करने वाले, वो डोनेट करने चाहिए। क्यों? उससे भी हज़ारों ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ बचेंगी और आगे से आगे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अगर लोग करें तो। मैं मलराज इंसा 85 मेंबर पंजाब। आज मैं यहाँ पीजीआई में आया हुआ हूँ। कुछ दिन पहले टोनी बंसल लहरा गागा से इनका बच्चा बेड 10 महीने का बच्चा था जो बेड से गिर के उनका दिमाग में चोट लगी। जब ये हॉस्पिटल में आए तो पीजीआई चंडीगढ़ डॉक्टरों ने इनको बताया कि बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका है, अब इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। तो इन्होंने पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए फैसला लिया कि बच्चा इस दुनिया से चला गया है और क्यों ना ये कोई मानवता भलाई का कोई नेक कार्य करे। तो उसके तहत इन्होंने बच्चे के अंग जो पीजीआई के डॉक्टरों से मिलकर इन्होंने बोला कि हम बच्चे के जितने भी पार्ट्स हैं वो डोनेट करना चाहते हैं। तो डॉक्टरों की टीम ने जैसे ही देखा कि बच्चे में अभी काफ़ी पार्ट्स हैं जो ज़रूरतमंदों को लग सकते हैं, तो उन्होंने रिसर्च की। तो उसके बाद आज इन्होंने बच्चे की जो किडनी और जितने भी अंग है वो पीजीआई चंडीगढ़ को डोनेट कर दिए हैं और वो पार्ट्स आज किसी ज़रूरतमंद को लग चुके हैं। तो ये सब डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से ही संभव हो पाया है। क्योंकि आज के समय में जो इतना बड़ा कदम है, कोई आम काम नहीं है ये, क्योंकि एक इतना बड़ा दुख, उस दुख को नज़रअंदाज करते हुए परिवार के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि इस परिवार ने ये महान कार्य किया। साथ में इन्होंने जो ऑर्गन थे वो डोनेट किए और अब इनकी इच्छा है कि जो बच्चे का जो शरीर है वो भी दान कर दिया जाए पीजीआई चंडीगढ़ में, ताकि जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो रिसर्च करके और नई इस बॉडी से रिसर्च कर सकें और ताकि वो आने वाले समय में मेडिकल रिसर्च में काम आ सके। तो सल्यूट है इनको और धन्य कहलाने के काबिल हैं पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनकी पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए आज डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए दिन रात मानवता की भलाई में लगे हुए हैं। जो कि डेरा सच्चा सौदा ने 168 मानवता की भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जिसके तहत गरीबों का मकान बनाकर देना, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग करना, जीते जी खून दान करना, मरणोपरांत आंखें दान करना, शरीर दान करना, इसमें ये एक बहुत महान कार्य हैं। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा आज दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें डेरा सच्चा सौदा एक ब्लड पंप के तौर पर सामने आता है। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणाओं पर। खैर, जद एक माँ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੈਸੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੰਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।